کارلو نے بتایا کہ جہاز میں انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا تھا۔ برونو چاہتا تھا کہ میں منشیات کے دھندے میں ان کا ساتھ دوں، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ میں منشیات کو انسانیت کا دشمن سمجھتا ہوں۔ انہوں نے میرے گھٹنے پر لوہے کی سلاخیں ماری تھیں، مگر کوئی بات نہیں، یہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جنگلی جڑی بوٹیوں کا ماہر بھی ہوں۔ اسپین کے خانہ بدوشوں کو جڑی بوٹیوں کا بڑا علم ہوتا ہے۔ اس جزیرے میں مجھے وہ بوٹی ضرور مل جائے گی جو میرے گھٹنے کا درد ختم کر دے گی۔ میرا خیال ہے کہ کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، صبح اٹھ کر جزیرے کا جائزہ لوں گا۔ پھر ہم وہیں ریت پر لیٹ گئے۔ چاند مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ہم بہت جلد گہری نیند سو گئے۔ آنکھ اس وقت کھلی جب ساحل پر ہر طرف دھند پھیلی ہوئی تھی۔ کارلو وہاں نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناریل کے درختوں کی قطار سے نکل کر میری طرف آیا۔ وہ ناریل توڑ کر کھا رہا تھا۔ ریت پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں نے سارا جزیرہ دیکھ لیا ہے۔ یہاں سوائے ناریل کے کھانے کے لیے دوسرا کوئی جنگلی پھل نہیں ہے، اور ہم خالی ناریل پر زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ میں نے کہا، مگر یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی تو نہیں ہے؟ کارلو سر ہلا کر بولا، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ میں فلپائن کی طرف جاتے ہوئے اس علاقے سے کئی بار گزر چکا ہوں۔ پھر اس نے اپنی پرانی پتلون اوپر کھسکا کر مجھے اپنا گھٹنا دکھایا، جس پر کوئی سرخ رنگ کی دوا لگی تھی۔ اس نے کہا، مجھے میرے مطلب کی بوٹی یہاں مل گئی تھی۔ اس کا رس گھٹنے پر لگا دیا ہے اور اب درد بہت کم ہو گیا ہے۔ پھر وہ جزیرے کے مغرب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرے ساتھ آؤ۔ ہم ساحل کی ریت پر سمندر کے ساتھ ساتھ چلتے جزیرے کے مغربی علاقے میں گئے۔ یہاں بھورے رنگ کی چھوٹی بڑی بے شمار چٹانیں پھیلی ہوئی تھیں۔ کارلو بولا، یہاں سے اگر ہم جنوب مغرب کی طرف سمندر میں سفر کرنا شروع کریں تو پہلے میڈغاسکر اور پھر جنوبی افریقہ آ جائے گا۔ شمال مشرق اور مغرب میں زوروں کی جنگ ہو رہی ہے، مگر جنوبی افریقہ میں ابھی تک امن ہے۔ اگرچہ وہاں بھی جنگی حالت ہے، مگر جنوبی افریقہ پر انگریز قابض ہیں اور وہاں ہمیں پناہ مل جائے گی۔ اس کے بعد سوچیں گے کہ ہمیں آگے کہاں جانا ہے۔ میں نے پوچھا، لیکن میڈغاسکر تک ہم کیسے پہنچیں گے کارلو بولا، یہی سوال مجھے پریشان کر رہا ہے، کیونکہ اس جزیرے اور جنوبی افریقہ کے درمیان بحر الکاہل کا ایک بہت بڑا سمندر پھیلا ہے۔ صرف ایک بات حوصلہ دیتی ہے کہ یہ سمندر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔ اگر ہم درختوں کے تنے جوڑ کر ایک تختہ بنا کر سمندر میں چل پڑیں تو میرے اندازے کے مطابق سمندر کی لہریں ہمیں دائیں بائیں کرتے ہوئے میڈغاسکر یا افریقہ کے مشرقی ساحل پر پہنچا دیں گی۔ کارلو کی سکیم کافی خطرناک تھی اور اس میں زندہ ساحل تک پہنچنے کی امید بہت کم تھی، لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ چنانچہ ہم نے گرے پڑے درختوں کے تنوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ ہم ایک ایسی ناپائیدار کشتی تیار کر رہے تھے جو اس عظیم الشان سمندر میں کہیں بھی ہمارا ساتھ چھوڑ سکتی تھی۔ ہم نے گرے پڑے تنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ خوب مضبوطی سے باندھا۔ اس کام کے لیے ہم نے وہ زنجیریں بھی استعمال کیں جن سے کارلو کو اس کے دشمن باندھ کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ جنگلی بیلوں کی موٹی موٹی رسیوں کو بھی کام میں لائے۔ یہ ایک کافی چوڑا سا تختہ بن گیا جس پر ہم نے درمیان میں ناریلوں کا ڈھیر لگا دیا اور اسے بھی قدرتی رسیوں کے جال سے جکڑ دیا تاکہ سمندر میں ڈولنے کی وجہ سے پھسل نہ جائیں۔ یہ کوئی پختہ اور یقینی انتظام نہیں تھا، لیکن ہم اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کارلو ایک ماہر ملا بھی تھا اور اسے سمندری سفر کا بڑا تجربہ تھا۔ اس نے تختے کے درمیان میں درخت کی ایک شاخ گاڑ کر اس کے ساتھ اپنی قمیض باندھ دی تاکہ ہوا کا رخ پتہ چل سکے۔ آخر ایک روز موہ اندھیرے ہم اپنی ناپائیدار تختہ نما کشتی پر بیٹھ گئے اور کارلو نے رسی کو کھول دیا۔ رسی کے نکلتے ہی تختہ سمندر میں ایک طرف آہستہ آہستہ ڈولنے لگا، پھر ایک بڑی سی موج نے اسے پہلے اوپر اٹھایا اور پھر پیچھے کی طرف ڈالا۔
हमारा तख्ता जजीरे के साहिल से तेजी के साथ दूर होना शुरू हो गया। कोई 1 घंटे बाद जजीरा नजरों से ओझल हो गया और हम खुले समंदर में आ गए। खुले समंदर में आते ही मेरा दिल बैठने लगा। चारों तरफ सब्ज रंग का वसी और अरीज समंदर ही समंदर था, जिसकी ऊपर नीचे होती सतह पर हमारा तख्ता आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ को बह रहा था। किसी बहरी जहाज में इस तरह सतह का ऊपर नीचे होना इतना खौफ महसूस नहीं करवाता, लेकिन हम तो बिल्कुल समंदर के ऊपर बैठे हुए थे। शार्क मछली से तख्ते के उल्टने का खतरा बहरहाल मौजूद था, मगर कार्लो बड़ा मुतमईन था। उसने कहा, समंदर सारा साल पुरसुकून रहता है और इसमें बहुत कम तूफान आते हैं, और अगर कोई तूफान आ भी गया तो हम खुद को रस्सियों से बांध लेंगे। वैसे भी ये तख्ता डूब नहीं सकता और ना इसमें पानी भर सकता है, बस किसी ना किसी तरह हमें उसके साथ चमटे रहना होगा। कार्लो ने हिदायत की थी कि हम दिन में 4 नारियलों से ज्यादा नहीं खाएंगे, इन्हीं का पानी पिएंगे और गरी खाकर भूख मिटाएंगे। इस हिसाब से हमारे पास तकरीबन 2 महीने की खुराक थी। एक खतरा बहरहाल अपनी जगह मौजूद था कि कहीं किसी जापानी या जर्मन जंगी जहाज से सामना ना हो जाए, या फिर जंगी आबदोजें हमें देख लें। साहिल के करीब पहुंचकर हमारा तख्ता समंदर में तैरती किसी बारूदी सुरंग से टकराकर तबाह भी हो सकता था। गर्ज कि हम हजारों किस्म के खतरात को साथ लिए समंदर में सफर कर रहे थे। पहले 3 दिन सुकून से गुजर गए। चौथे दिन दोपहर के बाद बादल छा गए और तेज हवाएं चलने लगीं, और हमारा तख्ता बुरी तरह हिचकोले खा रहा था। कार्लो बड़ी महारत से तख्ते को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था, अगरचे ये कई बार घूम जाता, मगर उसका रुख जुनूब मगरिब की तरफ ही रहा, क्योंकि समंदरी मौजों का रुख भी उसी तरफ था। तेज हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली, और समंदरी मौजों और हवाओं के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। हमने अपने आप को रस्सियों से जकड़ लिया था और तख्ते पर लेट गए थे। एक जबरदस्त तूफानी मौज ने हमें नीचे से उठाया और कई गज दूर दूसरी मौज पर फेंक दिया। खुदा का शुक्र है कि तख्ता उल्टा नहीं था, मगर वो रस्सी टूट गई जिससे नारियलों का जाल बंधा था। कितने ही नारियल जाल में से निकलकर समंदरी लहरों की नजर हो गए, मगर कार्लो ने खुद को जाल के ऊपर गिराकर बाकी नारियलों को गिरने से बचा लिया। खुदा खुदा करके तूफान का जोर कम हुआ, मगर हवा अब भी तेज चल रही थी और बारिश भी हो रही थी। जब तूफान थम गया और समंदर पुरसुकून हुआ तो हमने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कार्लो से कहा, तुम तो कहते थे कि इस समंदर में तूफान नहीं आते, ये तूफान कहाँ से आ गया? कार्लो बोला, मैंने तो कहा था कि इस समंदर में कभी कभार ही तूफान आते हैं। मुझे क्या पता था कि वो कभी कभार का तूफान आज ही आ जाएगा। बहरहाल हमारे पास इतने नारियल बच गए हैं कि हम मजीद 3 हफ्ते गुजारा कर सकते हैं, लेकिन आगे क्या होने वाला था इसकी हमें खबर नहीं थी। हमारा बेयारो मददगार समंदरी सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया। मेरा ख्याल है बहरुल काहिल के वसी और अरीज समंदर में ये हमारा 16वां या 17वां दिन था। नारियल की गरी हमारे जिस्मों की ताकत पूरी नहीं कर सकती थी। हम भूख प्यास से तो बच गए थे, मगर मैं अपने जिस्म में कमजोरी महसूस कर रहा था। कार्लो का भी यही हाल था। हम ज्यादातर तख्ते पर लेटे रहते, समंदरी लहरें उसे अपने आप जुनूब मगरिब की तरफ धकेले लिए जा रही थीं। उस वक्त मुझे एक बार अपना शहर बड़ा याद आया। दिल ने कहा, तुम्हें किसने अपना शहर छोड़ने को कहा था? लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि आखिर एडवेंचर होता है, इसका तजुर्बा शहरों में बैठकर नहीं हो सकता। दुनिया की जिंदा कौमों के अफराद ने उसी तरह समंदरों में खतरात मोल लेकर नए नए मुमालक दरियाफ्त किए हैं, और मुसलमान अरबों ने सैकड़ों साल पहले समंदरों का सफ़र करके मलाया और चीन तक तिजारती रास्ते दरियाफ्त किए थे। इस ख्याल से मेरा हौसला बढ़ जाता, मगर समंदर में बिल्कुल खुली हालत में सफ़र करने से हमारा बुरा हाल हो गया था। समंदरी हवा ने हमारे जिस्मों पर नमक की एक तह कलम की तरह चढ़ा दी थी जो सख्त परेशान कर रही थी।
समंदर की कोई लहर हमारे ऊपर से गुजरती तो वो मजीद नमक की तह चढ़ा जाती। हमारे रंग सांवले हो गए थे और आंखों में हल्के पड़ने लगे थे। जब मैं किसी दिन हिम्मत हारने लगता तो कार्लो अपनी बातों से मेरे अंदर दोबारा नई ताकत भर देता। एक दिन समंदर पर तेज धूप फैली थी, जिसकी चमक हमें हसबे मामूल परेशान कर रही थी। हम नाश्ता कर रहे थे, यानी एक नारियल हमारे हाथ में था। उसका पानी पीने के बाद गरी खा रहे थे कि अचानक हमें कुछ फासले पर समंदर में एक जजीरा सा उभरा हुआ दिखाई दिया। मैंने खुशी से तकरीबन चीख कर कहा, कार्लो, जमीन आ गई। जमीन की कद्र खुले समंदर में पहुंचकर ही होती है। कार्लो ने उस तरफ देखा तो खुश होने की बजाय परेशान हो गया और कहने लगा, ये जमीन नहीं, वेल मछली है। मेरे देखते देखते उस वेल मछली की गर्दन से पानी का एक फवारा सा निकला और फिर वो समंदर में गोता लगा गई। कार्लो ने घबरा कर कहा, अपने आप को रस्सी से जकड़ कर लेट जाओ। उसने हमें देख लिया है, वो अब हमारे तख्ते पर आकर हमें उल्टाने की कोशिश करेगी। हमने जल्दी जल्दी अपने आप को रस्सियों में बांधा और तख्ते से चमट गए। कोई 2 मिनट बाद तख्ता ऊपर को उठा और फिर वो समंदर की सतह से कोई 15-20 फीट ऊपर को उछला। मेरे मुंह से खौफ के मारे चीख निकल गई। तख्ता उलटने की बजाय बिल्कुल उसी तरह समंदर की लहरों पर आन गिरा। कार्लो चिल्लाया, उसी तरह लेटे रहना, वेल ने देख लिया तो वो इसे तबाह कर देगी। हमारी खुशकिस्मती थी कि वेल दोबारा हमें ना देख सकी और उसके ख्याल में हम तख्ते से गिरकर समंदर में डूब चुके थे। कुछ देर बाद सुकून हो गया और कार्लो ने सर उठाकर देखा और बोला, वेल निकल गई है। पहाड़ जितनी बड़ी वेल मछली जरूर निकल गई थी, लेकिन हमारे बाकी बचे हुए काफी नारियल समंदर की नजर हो गए थे। कार्लो ने तशवीश से कहा, हमारे पास सिर्फ 4 दिन की खुराक रह गई है। अब कोई ना कोई साहिल हमें नजर आ जाना चाहिए। मैंने परेशानी से पूछा, कहीं हम समंदर में भटक तो नहीं गए? कार्लो ने कहा, ये रात को सितारे देखकर ही बता सकूंगा। जब रात आई तो हम बेदम से होकर तख्ते पर पड़े थे। कार्लो ने सितारों को देखा और आहिस्ता से बोला, हम ठीक सिमत को जा रहे हैं। मैंने लेटे लेटे दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अब मेरी ये हालत हो गई थी कि किसी वक्त दिल चाहता आहिस्ता से समंदर में फिसल जाऊं। खुदा जाने ये समंदर का कैसा तिलस्म था कि वो मुझे अपनी तरफ खींचने लगा था। ऐसा महसूस होता जैसे समंदर में गिरते ही मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। लेकिन अल्लाह ने हमारी बड़ी मदद की और ऐन उसी वक्त जब हम जिंदगी से बिल्कुल मायूस हो चुके थे, दूर से जमीन की एक काली लकीर नजर आई। सबसे पहले ये लकीर कार्लो ने देखी, फिर उसने हाथ के इशारे से मुझे मुतवज्जह किया। ये सियाह लकीर समंदरी मौजों में किसी वक्त डूब भी जाती थी। कार्लो ने कहा, ये खुश्की है और जरूर ये मेडागास्कर का साहिल होगा। ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता फैलती जा रही थी। अब समंदर में हमें लहरों के साथ कुछ दरख्तों की शाखें और झाड़ियां भी तैरती नजर आने लगी थीं। कुछ बगले भी हमारे ऊपर से उड़कर गुजर गए। ये इस बात का सबूत था कि हम खुश्की की तरफ बढ़ रहे हैं। काफी देर तक हमारा तख्ता लहरों पर बहता रहा। अब लहरों का जोर और रुख साहिल की तरफ हो गया था और वो हमारे तख्ते को बड़ी तेजी से साहिल की तरफ ले जा रही थी। दरख्तों के झुंड वाज़ेह होने लगे और चट्टानें भी नजर आने लगीं। आखिर समंदरी लहरों ने हमारे तबाह हाल तख्ते को उछालकर साहिल की गीली रेत पर फेंक दिया। हम तख्ते पर से फिसलकर रेत पर औंधे मुंह गिरे और वहीं पड़े रहे, जैसे ठंडी जमीन का शुक्रिया अदा कर रहे हों कि इसने आखिरकार हमें अपने साथ लगा लिया। फिर हम रेत पर बैठ गए, एक निगाह साहिल के साथ साथ दूर तक फैले दरख्तों पर डाली। कार्लो ने मुझे एक लाइट हाउस का मीनार दिखाते हुए कहा, हम किसी बर्रे-आज़म पर पहुंच गए हैं और ये कोई जजीरा नहीं है। हम साहिल की रेत पर थके हारे बैठे थे कि वहां कुछ लोग आ गए। ये हबशी थे मगर जंगली नहीं थे। उनमें से कुछ ने निकरें पहन रखी थीं और सर पर तिनकों के हेट थे। मेरा साथी कार्लो फ्रांसीसी जबान जानता था
उसने उनसे पूछा कि ये कौन सा मुल्क है। एक हबशी ने कहा ये मोज़म्बिक का मुल्क है। कार्लो ने उन्हें अपने समंदरी सफ़र की दास्तान मुख्तसरन सुनाई और फिर वो हमें उठाकर एक कस्बे में ले गए जहां खाने पीने की चीज़ें दी गईं। ये लोग बड़े नेक दिल थे, उन्होंने हमें अमन से वहां रखा और हमारी खूब खातिर मदारात की। उनकी ज़बानी हमें पता चला कि जर्मनों और अंग्रेज़ों की जंग ऊपर शुमाल में बिन गाज़ी के मकाम पर लड़ी जा रही है। हम उस वक्त जुनूब मशरिकी अफ्रीका में थे, जहां जंग के असरात ना होने के बराबर थे। एक दिन कार्लो ने कहा, यहाँ से स्पेन जाने का एक ही रास्ता है कि हम यहाँ से सूडान जाएं, फिर मोरितानिया से होते हुए मराकू पहुँचें। मराकू की शुमाली बंदरगाह से स्पेन बिल्कुल थोड़े फासले पर है, दरमियान में आबनाए जबल अल तारिक है, मगर उसके लिए हमें वस्ती अफ्रीका के घने जंगलों और मोरितानिया के सहरा से गुजरना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल काम है, मगर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऊपर शुमाल की तरफ जंग हो रही है और सारे रास्ते बंद होंगे। ये सुनकर मैं भी सोच में पड़ गया। मेरा इरादा भी यही था कि कार्लो के साथ स्पेन के खाना बदोशों में शामिल हो जाऊंगा और उनकी रोमानवी जिंदगी का मुताला करूंगा, क्योंकि मैंने हस्पानवी खाना बदोशों के बारे में बड़ी दिलचस्प और रोमांटिक बातें सुन रखी थीं। और फिर दिल में ये ख्वाहिश भी थी कि उस मुल्क को देखूं जहां मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की थी, जहां मुसलमान साइंसदानों ने ऐसे साइंसी कारनामे अंजाम दिए थे जिनसे आज भी यूरोप फ़ायदा उठा रहा है। मैं गरनाता, अलहमरा और मस्जिद कर्तबा देखना चाहता था, लेकिन कार्लो ने वहां तक पहुंचने की जो राह बताई थी वो बड़ी ख़तरनाक ही नहीं थी बल्कि बहुत हद तक नामुमकिन भी थी। हम रस्सियों के तख्ते पर समंदरी सफ़र तो कर सकते थे, मगर आदम खोरों और जहरीले सांपों वाले जंगलों और सूरज की तपिश में जलते हुए सहराओं को अबूर नहीं कर सकते थे। इस सफ़र के लिए रुपयों की भी ज़रूरत थी जो हमारे पास नहीं थे। मैंने कार्लो को मशवरा दिया कि हमें स्पेन तक पहुंचने के लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए। कार्लो ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही एक नज़दीकी और मुमकिन रास्ता है। फिक्र ना करो, हम सामान और असलहा लेकर चलेंगे। जब ये फैसला हो गया कि हम अफ्रीका के सारे वस्ती इलाके से ही गुजरकर स्पेन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए हमने पैसे जमा करने का सिलसिला भी बना लिया। हम बंदरगाह पर काम करने लगे। कोई 2 माह बाद इतनी रकम इकट्ठी हो गई जो हमारे अखराजात के लिए काफ़ी थी। सबसे पहले हमने एक राइफल और एक पिस्तौल खरीदा। 2 खच्चर भी खरीद लिए जिन पर सवार होकर हमें ये ख़तरनाक सफ़र करना था। 2-4 थैले, टन और खुश्क दूध और खुश्क गोश्त के डब्बे भी साथ रख लिए और एक नक्शा भी लिया, जिसे गौर से देखने के बाद कार्लो ने जगह जगह निशान लगा दिए। मोज़म्बिक नामी इस साहिली कस्बे से रेलगाड़ी वेला कबराल तक जाकर ख़त्म हो जाती थी। यहाँ से आगे अफ्रीका की सबसे बड़ी झील न्यासा या मलावी झील थी। झील पार करने के बाद हम मलावी के मुल्क में दाखिल हो जाते। कार्लो और मैंने अफ्रीका का नक्शा देखा तो हैरत होती थी कि हमने इतने बड़े बर्रे-आज़म के ख़तरनाक जंगलों और खूनी सहराओं में अकेले सफ़र करने का इरादा कैसे कर लिया था। ये इतना तवील सफ़र था कि आज भी मैं सोचता हूँ तो शर्मसार रह जाता हूँ। बहरहाल हमने सिर्फ इरादा ही नहीं किया था बल्कि उस पर अमल भी शुरू कर दिया था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।